Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. The non-linear regression means where the data is like that, where we cannot represent the data with a straight line. Okay, so representation of the data means what you are having optimum value of that slope and intercept. Through that, you can represent your whole data. If the data is 10,000 row, then 10,000 row you are representing through that two values. Okay, so that is what the straight line formula is ax plus b, where a and b are slope and intercept. But sometimes we are having data. If we plot our data in the scatter graph, we come to know that the data is not representing any straight line. Yes, very good, Nisha. And we require to use other way around to get the accuracy. And for that, we are having some non-linear regressions. Yes, anyone know what type of non-linear regression we have learned in depth? Yes, anyone? And yes, it is not representing through straight line, but we required the curve line. Okay. So yes, anyone? कौन सा रिग्रेशन हमने देखा था कि अगर हमें पॉलिनोमियल करना है तो क्या करना होगा. For we are having again two variables, independent variable and dependent variable, and whatever the independent variable, through that variable only we are adding the new parameters, right? So one parameter is x, then another is x square, then x cube, likewise. Clear? And of course we can use square root also, but based on our data or problem statement or domain knowledge, we require to use the polynomial function, right? So that is what the nonlinear regression. And after that, we have also seen that curve line is not is also not fit with some type of data, where the data is having two states, one or zero, yes or no, true or false, or you can say success and failure. Okay, so in that case, we required what a kind of a regression where we represent the data in these two states. Okay, so वो हमने देखा था. ठीक है, तो उसका डेटा जैसे हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है वो स्टेट 1 है और यहाँ पे स्टेट 0 है. अगर इस टाइप का डेटा अगर हमारे पास है तो हम कोई कर्व नहीं बना सकते यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ. कोई भी टाइप से कर्व जो है वो मैक्सिमम एक्यूरेसी नहीं दे सकता है. सो इन दैट केस वी रिक्वायर्ड अनदर टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज नथिंग बट अ लॉजिस्टिक फंक्शन, and this is also called sigmoidal function. Sigmoid function we have already seen with the activation function also, but here we will see how this activation function or sigmoid function derived. Okay, so कैसे वो value आया है 1/1 plus e raised to minus x, that we will see. Okay, so that is what the logistic regression is. It is basically for the categorical value क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जहाँ पे होगा वहाँ पे ये यूज होता है, जिसमें डिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कैटेगोरिकल वैल्यू. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जब भी हमें सॉल्व करना है एंड वी आर हैविंग डेटा लाइक बाइनरी डेटा, then or not necessary all the time binary data, may be possible sometimes we are having non binary data also. Okay, non binary data होगा तो भी हम इसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, वेयर वी आर हैविंग सम ऑर्डिनल्स डेटा, नॉमिनल डेटा. ओके, सो दैट टाइम also we can use, but we will see in detail with the binary, so we come to know that how all this logistic regression is working. Okay, so it is again a predictive analysis algorithm. Of course, how it is predictive analysis algorithm, because again we are doing prediction for the new data. Okay, so logistic regression is a type of regression, but it is different from the linear regression, of course, and it is also different from the it is a part of non-linear regression, of course, because straight line is not there. Okay, but it is different from that polynomial or all the curvilinear regressions. Okay, so this is again a different type of regression where we will use the sigmoid function. Okay, which is a complex cost function, you can say. Okay, सो यहाँ पे हम जब सिग्मोइडल फंक्शन यूज करेंगे तो सिग्मोइडल फंक्शन में ऑलवेज जो वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है, 0 to 1. ठीक है, वो हमने देखा था कि 0 to 1 के बीच में ही रहता है. 1 मीन्स सक्सेस एंड 0 मीन्स failure. So whatever the data we are getting through linear regression, we require to convert that data between the 0 and 1.
then only we will get what, this sigmoid function. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा आउटपुट डेटा आता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे इसका, सो हमें क्या करना है, जो हमारा लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ax प्लस बी, वेयर with the value of a and b we are getting the value of y. ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है, उसको हमें 0 और 1 में कन्वर्ट करना है, सो दैट वी विल गेट द this type of plots. Okay, so value of the logistic regression must be 0 or 1, which cannot go beyond this limit, so it form a curve like the S form, and S form curve is also called sigmoid function or logistic function. ठीक है, तो यहाँ पे so important चीज है वो है threshold value. Why this threshold value is important? Because whenever I am getting the value of y in the form of in the range between 0 and 1, then I, based on that value, I require to give the output, whether the category is yes or no. Okay, so yes or no कैसे पता चलेगा? तो based on the threshold value, because every time you will not get exactly 1 and 0. Clear? Sometimes you are getting 0.45, then what happened, or 0.3. So in that case you require to consider it as a 0, and if it is 0.8, then you require to consider as 1. So if your threshold value is 0.5, we have also learned about the threshold value. It can be anything. To choose this threshold value also we are having some algorithm. ओके, बट यहाँ पे इस केस में अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 है तो क्या करना है, इफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 0.5, it means what, you required based on that value you require to give the output value 1 or 0. Clear? So that is what the use of this. Now what are the assumptions we are taking in this logistic regression? That dependent variable must be categorical in the nature. Okay, means what, my dependent variable is always having 0 or 1, yes or no, true or false, like binary variables. And if it is not binary, then it must be ordinal or nominal. It means what, I am able to assign the dummy variables in the डेटा, लाइक अगर आपका डेटा ऐसा है कि सिटी के ऊपर है तो सिटी और 5 ही सिटी आप यूज कर रहे हो एज अ आउटपुट डेटा, तो वो 5 सिटी के लिए आपको क्या यूज करना है, 1 2 3 4 5. सो दैट वे कैटेगरी, सम टाइप ऑफ कैटेगरी मस्ट बी देयर. And independent variable should not have the multi-collinearity. Now what is this multi-collinearity? Multi-collinearity means what, the collinear or correlation between the two variable, that is called the collinearity. Now the one variable should not be depend on more than one column. Clear? So that is also we are assuming before we are going with the लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, सो ये भी यहाँ पे पैरामीटर, इसीलिए बोला जाता है कि हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हर एल्गोरिथम नहीं चलेगा. ऑलवेज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू रिक्वायर टू चूज द एल्गोरिथम. ओके, so now for logistic regression equation what we required, so we already know the simple linear regression formula. This is the formula. Simple linear regression नहीं है, ये multiple linear regression formula है, where we are having more than one parameter x1 to xn. Okay, so x1 to xn के लिए उतने हमें जितना dimensions बढ़ते हैं उतना हमको क्या चाहिए, slope, respective slope and this intercept. So y is equal to b0, b1, x1, b2, x2, b3, x3 up to bn xn. This is what the straight line formula is. Okay, so now in logistic regression we want data between 0 and 1. So what we will do? So we know that whenever we divide the data with the value, जो भी आपके पास वैल्यू है उससे हम अगर कुछ वैल्यू से उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो डेटा फिर 0 पॉइंट में आ जाता है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है. ये सबको पता है, ठीक है. सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, दे हैव डिवाइडेड टू गेट द डेटा बिटवीन 0 एंड 1, they have divided the data in 1 minus y. तो ऊपर क्या है आपका y और divided by 1 minus y. Now whatever the thing we will do with the y, because this whatever the output value is there, that output value we require to convert between 0 and 1. Clear? So यहाँ पे क्या किया है, y minus 1 minus y कर दिया है यहाँ, ठीक है. क्लियर हुआ?
So in that case, again the data is between 0 to infinity, because if the y value is 0, then the value will be 0, and if y value is 1, then it will be infinity. तो डेटा यहाँ पे हमारे पास कैसे आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी वैल्यू में आ रहा है, ठीक है. नाउ टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हमने क्या किया, यहाँ पे नेचुरल लॉग लिया है. नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई. ओके, जनरली जो लॉग रहता है वो लॉग कैसा रहता है, बेस 10. यहाँ पे क्या है, लॉग ई है. यहाँ पे लॉग कौन सा होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल लॉग, ठीक है. तो ये आपका नेचुरल लॉग है. तो और डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं इसको. सो टाइप ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमने देखा कि बाइनोमियल हो सकता है, मल्टीनोमियल हो सकता है, ऑर्डिनल हो सकता है. बाइनोमियल का मतलब होता है वे आर हैविंग ओनली टू बाइनरी वैल्यूज 0 and 1. मल्टीनोमियल मींस मल्टीपल कैटेगरीज, एंड ऑर्डिनल्स मींस सम टाइप ऑफ ऑर्डर. ओके, जैसे मीडियम, हाई, लो, दैट वे, ठीक है. तो इस हिसाब से कोई भी टाइप का हो, पर हमें काम कैसे करना है, यहाँ पे हमें काम कैसे करना है, डेटा जो भी होगा आपका, वी रिक्वायर टू कन्वर्ट इट इनटू 0 and 1, ठीक है. सो यहाँ पे ऐसे हमने बात की जैसे कि y हमारे पास लीनियर रिग्रेशन था, उसका हमने क्या किया, 1/1 minus y, एंड उसका हमने नेचुरल लॉग लिया. दिस 1/p/1 minus p, और y divided by 1 minus y is nothing but what, it is called odds. Odds का मतलब होता है it's the event probability divided by event नहीं होने की probability. एक तो इवेंट के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय इवेंट फेलियर प्रोबेबिलिटी. हियर यू कैन सी दिस, इफ माय अपर वैल्यू इज p, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय 1 minus p, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 minus p, ठीक है. तो वो फेलियर ही हुआ ऑफ कोर्स, ठीक है. सो दैट वे वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द ऑड्स टू गेट द वैल्यू बिटवीन द 0 to y, ठीक है. सो यहाँ तक हमें पता चला. अभी हमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है. तो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एक हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें someone want to purchase house, okay, and based on that for that person want to apply for the loan, okay. Now whenever you are applying for the loan, the process is what, the process is they will see your credit score, okay. Now each and every person is having their CIBIL code, और CIBIL code के through credit score मिलता है. Credit score a kind of a score where all the details are there, okay, you are paying your all the bills all on time or not, okay. So that way they will get the knowledge that whether the person is able to repay that loan or not, okay. So that is what the credit score is, okay. So here to do this, यहाँ पे हमने क्या एक मॉडल लेना है हमें. सो डेवलप अ मॉडल दैट विल प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी एंड द ऑड्स ऑफ बीइंग अप्रूव्ड फॉर एनी गिवन क्रेडिट स्कोर. सो नाउ हियर वी वांट टू सी वेदर द बेस्ड ऑन द क्रेडिट स्कोर we are having the data whether the loan is approved or not, and for the future data we require to assume, let's say we require to predict of course, ठीक है. सो यहाँ पे देखो क्रेडिट स्कोर दिया हुआ है और उसके साथ हमारे पास कुछ हिस्ट्री डेटा है where we are having that particular score is approved or not approved, okay. So that is there. Now discover approximately what credit score is associated with the probability is 50%, okay, for being approved, ठीक है. तो यहाँ पे हर एक जगह पे हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड है, और फॉर विद दैट लाइकलीहुड वी आर हैविंग दिस वैल्यू अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड. नाउ सपोज द लाइकलीहुड इज 50%, ओके, तो उसका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, हम उल्टा भी देख सकते हैं, ठीक है. हम अभी तक कहाँ देख रहे थे कि independent to dependent, but we can see from dependent to independent also, okay. So that is also possible through this model. So now input your score of 720 into the model to determine the probability and odds of you being approved for a mortgage, okay. So that we require to find out, okay. And another thing we require to find out is determine how improving your credit score from 720 to 750 would affect your probability and odds for being approved for the mortgage.
तो अगर आपका 720 है से 750 अगर स्कोर हो जाता है तो फिर आपके लोन की अप्रूवल की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। सो क्लियर हुआ सबको ये कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्रेडिट स्कोर से अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, और कौन सी कितनी प्रोबेबिलिटी है अप्रूवल मिलने की, ओके। और दूसरा हम रिवर्स वे भी देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है अप्रूव होने की तो क्रेडिट स्कोर क्या होगा, ठीक है। सो दैट वे टू वे राउंड वी वांट टू फाइंड आउट द डेटा, ठीक है। सो दिस इज टोटल 1000 डेटा वी आर हैविंग फॉर दिस, बट हियर वी हैव गिवन ओनली 15 डेटा. These are the scatter plot diagram. Of course, your scatter plot is always having two states, 1 and 0, based on this value. This way we require to apply the estimator actually, or we require to apply the logistic regression. Now what we require to do with this logistic regression, first of all, okay. So first of all हम लोग क्या करना चाहते हैं कि model the probability of event occurring depending on the value of the independent variable, which can be categorical or न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमें एक मॉडल तैयार करना है कि जहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Then the most important thing is estimator. Estimate the probability that an event occur for a randomly selected observation versus the probability that the event does not occur, and this is called odds, ठीक है। सो ऑड्स का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस versus probability of failure. That is what the estimate, okay, or odds, okay. Then predict the effect of series of variable on a binary response variable, okay. So that also we can do, and we can finally what we require to do is we are able to classify the observations by estimating the probability that an observation is in a particular category, whether it will be approved or not approved. So this we can find through this logistic regression, okay. Now whatever the data we are having, we have divided into the two parts, that is approved and non-approved, okay. But how we can actually calculate this? For that we required some formula. Although we are having one formula, but we require to derive one more formula for the easy operation, okay. So here what we are having dependent variable in logistic regression which follows the Bernoulli trials or distribution. Now what is this Bernoulli trial? Bernoulli trial distribution is a special type of distribution where the state is always one, either 0 or 1, success and failure, और कोई भी state उसमें नहीं हो सकता है in one trial, okay. So that is what the Bernoulli trial is. बट इन दिस बर्नौली ट्रायल सक्सेस को 1 और फेलियर को अगर हम 0 कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर उसको क्या बोलेंगे, सक्सेस को P और फेलियर को Q बोलते हैं, ठीक है। सक्सेस मींस P और फेलियर मींस 1 माइनस P, दैट इज Q, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, बर्नौली ट्रायल में। बट अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें तो इन दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी आर हैविंग मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल अननोन प्रोबेबिलिटी, okay, and we require to estimate that unknown probability for any given linear combination for the independent variable, of course, ठीक है। So here we are having only one row, but here we are having multiple rows for the estimation. So what we require to do, so therefore we need to link together our independent variable to eventually it becomes the Bernoulli distribution. That link is called logit, okay. सो वो जो हमारे पास डेटा है उसको क्या बोलेंगे हम, लॉगिट। लॉगिट किसको बोलेंगे, जहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी P है और एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी P हैट, द टू पैरामीटर्स आर देयर, ओके। सो गोल इज व्हाट, टू एस्टिमेट द P फॉर अ लीनियर रिग्रेशन ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज व्हाट द गोल वी आर हैविंग, ओके। सो जैसे हमने बात की थी log E विच इज ऑल्सो कॉल्ड ln. So log E odds क्यों बोला जाता है, because probability of success divided by probability of failure, and this particular formula is called logit, okay, and it is also called the natural log of the odd ratio, okay. So इसको ये बोला जाता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास है
अब इस फॉर्मूला से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. सपोज वी आर हैविंग ओनली टू वेरिएबल्स एज पर अवर करंट सिनेरियो. So with the two variables, one is output variable and another one is input variable. So suppose x1 is my input variable, then my simple linear regression formula will be y is equal to beta 0 plus beta 1 x1. And for linear regression we have converted into natural log. ठीक है. अब ये नेचुरल लॉग है और लॉग को अगर आपको रिमूव करना है तो क्या करना होगा, आपको ये टर्म्स जो है वो यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये सबको आता होगा, दिस इज नॉर्मल मैथमेटिक्स. सो p अपॉन 1 माइनस p इज इक्वल टू e रेज टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1. क्लियर. कैसे होता है, ऐसे तरीके से लॉग अगर यहाँ से निकाल लेते हैं तो इसका जो बेस होता है वो यहाँ चला जाता है. ठीक है. सो log 232 इज इक्वल log 32 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 5 अगर है आपके पास तो 2 रेज टू 5 हो जाएगा और यहाँ पे 32 अगर आपने एंटी लॉग लिया है तो दिस इज कॉल्ड एंटी लॉग. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट what we have done, we have just put this term over here. तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गई है. मल्टीप्लाई में आने के बाद ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया तो दोनों में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. आफ्टर दैट ये जो टर्म है वो उसको इधर लेकर आ गए तो यहाँ पे p कॉमन मिल जाएगा आपको. And finally we got the estimation regression equation, that is p is equal to e raised to beta 0 plus beta 1 x divided by 1 plus e raised to beta 0 plus beta 1 x1. Clear. So this is the formula to calculate the estimated regression equation. Now again we want to simplify this because we know that the sigmoid function formula is 1 upon 1 plus e raised to minus x. So how we get that formula? ठीक है. So again we go for the another simplification. So this is the formula, and suppose for this particular side, राइट हैंड साइड जो बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 है उसको अगर हम z बोलते हैं. ठीक है. दिस इज नथिंग बट ऑल द इनपुट वेरिएबल्स एंड स्लोप. ठीक है, और इंटरसेप्ट, सॉरी. सो उसको अगर हम z बोलते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है. And now this formula is equal to 1 upon 1 plus e raised to minus z. कैसे, तो उसको हम देखते हैं कैसे होता है ये. सपोज हमारे पास ये फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड सिग्मॉइड फॉर्मूला. नाउ सिग्मॉइड फॉर्मूला जो भी है आपके पास, वो फॉर्मूला में e रेज टू माइनस z को हमने 1 अपॉन e रेज टू z लिख सकते हैं. ठीक है. 1 अपॉन e रेज टू z लिखा तो यहाँ पे हम उसका एलसीएम लेके e रेज टू z यहाँ पे आ जाएगा और डिवाइड बाई है तो डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर आ जाएगा. तो नाउ अगेन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ RHS. ठीक है. सो इट मीन्स दिस एंड दिस टू टर्म्स आर सिमिलर. And this is what the formula of sigmoid function. Clear हुआ सबको sigmoid function कैसे आया? Yeah, any questions students up till now? Yes, any questions students? Okay. So now we will do one example because this particular टॉपिक जो है वो एज अ न्यूमेरिकल भी आ सकता है. ठीक है. सो एक एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है. सो द डेटा सेट ऑफ पास एंड फेल इन एन एग्जाम फॉर 5 स्टूडेंट इज गिवन. सो नंबर ऑफ स्टडी स्टूडेंट ने जितना आवर्स स्टडी किया है वो आवर्स का डेटा है. एंड हियर वी आर हैविंग डेटा ऑफ पास एंड फेल, दैट इज रिजल्ट. ओके. And if we use logistic regression as the classifier and assume the model suggested by the optimizer will become the following for odds of passing a course. So now we are having already one equation of odd, that is log odd is equal to minus 64 plus 2 multiplied by hours. So now minus 64 क्या है यहाँ पे आपका? minus 64 क्या है यहाँ पे? that beta 0 and ये क्या है आपका 2 beta 1. और ये आपका क्या है? इनपुट वेरिएबल, दैट इज अवर्स. अवर इज योर इनपुट वेरिएबल x and this is your odds, that is p divided by 1 minus p, that is and uska natural log. ठीक है. So this is the formula is already given. Okay, and based on that we require to solve these two problems. Okay, now what are the problem? The first problem is how to calculate the probability of pass for the students who studied 33 hours.
जो स्टूडेंट्स ने 33 आवर्स जो आवर्स स्टडी किया है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? Of course that probability will be more than 50, then only this one is here. ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी 50 से ज्यादा ही होगी तभी यहाँ पे 1 हुआ है, 50 से कम होता तो 0 होता. ठीक है, बट वो कितनी प्रोबेबिलिटी से आप बोल सकते हो कि उसका रिजल्ट पास होगा? दैट प्रोबेबिलिटी वी रिक्वायर टू कैलकुलेट. ओके, क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन? ठीक है, ओके. तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी? तो फॉर्मूला इज व्हाट? log odd is equal to -64 plus 2 multiplied by hours, and we are having a logistic formula also, that is sigmoid formula. ठीक है, वो फॉर्मूला लगाने से हमें मिलेगा. ठीक है, सो हमारे पास ये फॉर्मूला था z is equal to b0 दिस इज एक्चुअली बीटा 0 बीटा 1 x. तो ये अगर हमने हमारे पास फॉर्मूला है, और दूसरा हमारे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला है 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस जेड. ठीक है, ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो आपको समझ में आया ना ई रेज टू माइनस जेड क्यों? बिकॉज हमने जो डेटा था हमारा, ये जो था डेटा हमारा, सॉरी यहाँ ये जो हमारा डेटा था बीटा 0 बीटा 1 उस x1 उसको हमने z बना दिया है यहाँ पे. ठीक है ना, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोर्स. ठीक है, सो वो हमें याद रखना है. तो यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से. z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिकॉज वी रिक्वायर्ड 33 आवर्स अगर स्टडी है तो रिजल्ट क्या होगा? तो 33 आवर्स का इनपुट है हमारे पास, तो वो इनपुट अगर हमने दे दिया तो वैल्यू z का क्या आ रहा है? 2. अगर z का वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस जेड. ठीक है, सो 1 प्लस 1 ई रेज टू माइनस जेड देने से वैल्यू क्या मिल रहा है? 0.88. एंड दैट वे वी कैन से दैट इट इज अ 88% चांस ऑफ पासिंग द कोर्स. क्लियर हुआ? सो वेरी इजी. यू रिक्वायर टू सी हाउ यू कैन use this formulas. Okay. Another question is, at least how many hours the student should study that make sure will pass the course with the probability of more than 95%. Okay, more than 95%. At least how many hours the student should study that make sure will pass the course with the probability of more than 95%. तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करना है. ये आवर्स को फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम z फाइंड आउट करेंगे, और z फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? p प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स और ई रेज टू माइनस z. ठीक है, और वहां पे p का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया है 0.95. ठीक है, तो उससे हम कैलकुलेट करें. ठीक है, so probability is already given 0.95. so 0.95 is equal to 1/1 plus e raised to minus z से हमें z का वैल्यू मिलता है 2.95, और z का वैल्यू डालने से हमें आवर्स मिलेंगे 33.47. क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैथ से पूरा के कैसे इसको कैलकुलेट करना है. जैसे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, इसको डिनोमिनेटर में ले लिया, उसके बाद -1 कर दिया. -1 करने के बाद यहाँ पे क्या किया है? लॉग लिया है दोनों जगह पे. ठीक है, दोनों जगह पे लॉग लेने से क्या होगा? यहाँ पे लॉग ई हो जाएगा. द लॉग ई वैल्यू इज इक्वल टू 1. ठीक है, और उसका जो भी ऊपर पावर होगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द लॉग ई ऑफ ई इज इक्वल टू 1. ठीक है, और उस हिसाब से हमें ये वैल्यू मिलेगी. और यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग फाइंड आउट किया 0.0526. ठीक है, तो जिसका वैल्यू है -2.94. फाइनली z वैल्यू इज इक्वल टू 2.9. ठीक है, सो इस तरीके से तो वी रिक्वायर टू actually we require to check for the two formula. One is odd formula and another one is probability formula. ठीक है,
Second problem. So at least how many hours the student should study that make sure will pass the course with the probability of more than 95%. So already we are having the reverse thing. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था ना, वो डेटा में हमें पता चल गया है कि रिजल्ट उसका 1 ही है, 95% प्रोबेबिलिटी दिया है इसका. ठीक है, तो इसका 95% प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब इसका रिजल्ट पास ही होगा. ठीक है, बट अगर उसका रिजल्ट पास है तो उसने कितना स्टडी किया होगा. तो नाउ पास है तो यहाँ पे एग्जैक्ट 0 और 1 से तो नहीं मिलता है, वी आर हैविंग सम पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, and based on the probability we are assuming how, we are calculating how many hours that person has studied. Okay, so इसके लिए अब हमें उल्टा सोचना है. समझ आया? So already we are having the probability, तो हम probability is equal to 1/1 plus e raised to z फॉर्मूला जो सिग्मोइड का है वो यूज करेंगे और उससे हम z की वैल्यू लेंगे यहाँ पे. एंड z इज नथिंग बट log odd, और log odd का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है -64 + 2 मल्टीप्लाई बाय आवर्स. तो अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? आवर्स, बिकॉज z का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, सो दैट वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा देखना है. यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर आवर्स है तो प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा, और अगर प्रोबेबिलिटी है और अगर प्रोबेबिलिटी है तो आवर्स कैसे मिलेगा. सो नाउ वी विल सी अनदर एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट. ओके, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्या है? सो अप टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, अभी तक हमने क्या किया था कि हम एक ही मॉडल को ट्रेन करते थे, एक ही मॉडल का आउटपुट लेते थे और उसी से हम डिसाइड कर लेते थे कि विच विल बी माय प्रेडिक्टेड वैल्यू. क्लियर? अभी तक का एल्गोरिथम सारे हमने ऐसे ही देखे, वेदर कोई भी टाइप की एल्गोरिथम हो. ठीक है, सो वी हैव नॉट ऑप्टेड फॉर सेकेंड ओपिनियन, यू कैन से. ठीक है, कि भाई सेकेंड ओपिनियन भी लेना चाहिए. ओके, so here we are having this type of arrangement के जहाँ पे हम लोग मल्टीपल मॉडल्स जो है उसके थ्रू हम आंसर्स लेंगे एंड बेस्ड ऑन द आंसर्स वी विल डिसाइड फॉर द फाइनल डिपेंडेंट वैल्यू. क्लियर हुआ? सो दैट इज व्हाट द रैंडम फॉरेस्ट इज मोस्ट used as a supervised learning algorithm for classification and regression. Okay, so and it is made for out of decision tree. ठीक है, तो जहाँ पे हम decision tree की बात कर रहे हैं, decision tree सबको अभी पता है कि what is decision tree. So and after constructing the decision tree we are getting the rules and based on the rules we are predicting the predictor value. So that is what we know about the decision tree. So now what this random forest is doing over here. So why random forest? So सबसे पहले तो decision tree have only one aspect, therefore are less accurate and flexible. ठीक है, एक ही तरीके से वो देखता है और मतलब कंस्ट्रक्ट करता है, और वो तरीका कौन सा है? एंट्रोपी. ठीक है, so based on that it will construct the decision tree and based on that it will decide based on rule it will decide the predictor value. And when it comes to classifying the new sample, decision tree also tends to overfit. ओवरफिट कैसे होगा? तो ओवरफिट का मतलब क्या होता है कि जब आप स्कैटर प्लॉट लेते हो और स्कैटर प्लॉट में आप सारे ही डॉट्स को कवर करने की ट्राई करते हो, दैट इज योर बायस्ड अप्रोच. ओके, एंड दैट वे वी कैन से दैट यू आर ओवरफिटिंग योर डेटा. ओके, सो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग दो चीजें हैं और उसके अंदर बैलेंस रखना है कोई भी एल्गोरिथम के अंदर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन ट्री इट इज ऑलवेज टेंड टू ओवरफिट. ओके, एंड इट विल गिव यू द बायस वैल्यू. ओके, so now if we want to overcome this problem we require to use the ensemble learning. Now what is this ensemble learning? Ensemble learning method in which the predictions are based on the combined result of various individual models. Okay, so now एक one simple example. Okay, कि आपकी शादी करनी है, अरेंज मैरिज है, ठीक है, और आप देखने गए हो, ठीक है, और उनके साथ बात करने के बाद ही फिक्स कर देंगे क्या आप? यस, एनीवन? और ऑप्शन देखेंगे ना? हाँ, कि एक ही के साथ एक बार देखा और शादी कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू कि आप सबसे राय मांगेंगे. ठीक है, आप सबको पूछेंगे कि भाई ओके दिस इज प्रॉपर और नॉट. ठीक है, तो सब अपने अपने तरीके से
क्या करेंगे, उसको जज करेंगे और आंसर देंगे. And when you will get the maximum positive answer, then you go for the result. Okay, so that the same thing, जब भी आपको ये वाला टॉपिक आता है ना, तो यही याद करके पूरा लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है. अच्छा, उनके मोहल्ले के लड़कों को से पूछेंगे. ओके, गुड. दे विल गिव यू राइट आंसर. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, तो सेम वही मेथड फॉलो करेंगे कि वी विल प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल मॉडल. ओके, इंडिविजुअल मॉडल्स बनाएंगे मोर देन वन, एंड उसका वोटिंग लेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट को डिसाइड करेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट द एनसेम्बल लर्निंग इज. नाउ व्हाई वी रिक्वायर टू डू दैट? सो नाउ यू कैन सी दिस फिगर. ओके, सपोज यू आर हैविंग एक एलिफेंट है और वो एलिफेंट को ये 4 लोग जो है वो जज कर रहे हैं कि ये चीज क्या है, और सोचो कि ये सभी को दृष्टि नहीं है. ठीक है, हाँ, दे आर ब्लाइंड. ओके, सो अब इस जगह पे क्या होगा कि सब अपनी अपनी तरह से देखेंगे. एक देखेगा कि नहीं वो पिलर की तरह है, एक देखेगा कि नहीं ये तो कुछ डिस्क की तरह है, एक देखेगा कि रोप की तरह है. सो यहाँ पे सब अपना अपना खुद का जजमेंट दे रहे हैं. समझ में आया? ठीक है, खुद का जजमेंट दे रहे हैं और वो इनपुट देंगे, उसके बेस पे आपको फिर डिसाइड करना है, सबको कंबाइन करके. ऐसा नहीं कि अलग अलग एक ही रिजल्ट को हम क्या कर लेंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे. हम कंबाइन करेंगे उस रिजल्ट्स को और उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा दे आर टॉकिंग अबाउट एलिफेंट. ओके, क्लियर हुआ? अदरवाइज क्या होगा, इफ वी गो फॉर ओनली वन ट्रेनिंग मॉडल, सो सपोज ये ट्रेनिंग मॉडल लेंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे वो पिलर ही है. समझ आया ना सबको? सो दैट वे वी विल गो फॉर द मल्टीपल ओपिनियन एक्चुअली. ओके, so ensemble model is a machine learning operate on a similar idea. They combine the decision from multiple model to improve the overall performance. Okay, now here to do this, 2 स्टेप में ये होता है और उसके 2 स्टेप में पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है bootstrapping. Now what is this bootstrapping? So now for multiple model we required multiple training set also. ये समझ में आया सबको? एक मॉडल को ट्रेन करना है, वो मॉडल कुछ भी हो सकता है. मॉडल इज बेस्ड ऑन डिसीजन ट्री, मॉडल मे बी बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन, मॉडल मे बी बेस्ड ऑन क्लस्टरिंग, कोई भी हो, पर उसके लिए डेटा तो चाहिए. सो नाउ फॉर ईच एंड एवरी मॉडल वी रिक्वायर्ड अ डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो नाउ this bootstrapping method is a statistical procedure that resample a single data set to create many simulated samples. Now what is this term says? It means what? Suppose you are having, let's say 1000 data in the set. So अब वो 1000 डेटा में आपने ये सोचा कि मुझे 5 अलग अलग मॉडल बनाने हैं, तो वो 5 अलग अलग मॉडल के लिए आपके पास डेटा चाहिए और हमारे पास डेटा कितना है? 1000 डेटा. सो 1000 डेटा में से कुछ डेटा और कुछ रो एंड कॉलम, आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ डेटा और कुछ कॉलम. ठीक है, वो मॉडल 1 में जाएगा, कुछ डेटा कुछ कॉलम मॉडल 2 में जाएगा, और मॉडल 3 में, मॉडल 4 में और मॉडल 5 में. विथ रिप्लेसमेंट. विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि once you have given the data in model 1, that data is again in the database and you can give to model 2 also. क्लियर हुआ सबको ये? विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि डेटा एक बार हमने यूज कर लिया तो you don't have to require, you cannot require that, you cannot use the data again. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? विथ रिप्लेसमेंट. ठीक है, so now all the models are having some data. Clear हुआ? So in statistics, bootstrap sampling is a method that involve drawing of sample data repeatedly with replacement from a data source to estimate a population parameter. Clear हुआ? Population parameter हम कैसे estimate करेंगे? Of course based on model. और मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए. डेटा के लिए हमारे पास एक ही डेटा सेट है और मल्टीपल मॉडल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बूटस्ट्रैप मेथड यूज करेंगे. ठीक है, तो बूटस्ट्रैप सैंपलिंग से वी आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम डेटा सेट, सिंगल डेटा सेट. क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है बूटस्ट्रैपिंग में? नाउ दिस पर्टिकुलर बूटस्ट्रैप सैंपलिंग वी आर यूजिंग इन मशीन लर्निंग ensemble algorithm called bootstrap aggregating. Okay, so it helps in avoiding overfitting, because sometimes what happen,
जब हमारे पास कुछ डेटा होता है तो कुछ कॉलम्स ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज्यादा पूरे डेटा के ऊपर हावी हो जाती है, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ऐसा भी कोरिलेशन होता है। तो समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर हम मल्टीपल मॉडल से काम कर रहे हैं तो एक मॉडल में वो कॉलम है ही नहीं, लेट्स से, ठीक है, सो उस केस में वो अलग तरीके से रिजल्ट देगा। तो हमें वो भी पता चलेगा कि अच्छा कोलिनियरिटी जो हो रही है उसकी वजह से पूरा एक्यूरेसी डाउन हो रहा है, समझ में आया? सो दैट वे वी कम आउट विद द कंक्लूजन एंड वी अवॉइड द ओवरफिटिंग, ठीक है। सो दैट इज द वे वी कैन डू विद द बूटस्ट्रैपिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है, एंटायर डेटा सेट रैंडमली सबसेट 1 2 3 अप टू एन में कन्वर्ट हो जाता है, जितने मॉडल हमें बनाने हैं उस हिसाब से एक सब डेटाबेस तैयार हो जाते हैं, ठीक है। Then the second thing, most important thing is bagging. Bagging में क्या होता है, bootstrapping the data first and after using its aggregate to make a decision is known as bagging. It means what? Now suppose you are having 5 algorithm, ठीक है, और आपने हमें वो टाइटेनिक वाला डेटा सबको याद होगा कि जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स थे और लास्ट में हमें ये फाइंड आउट करना था कि वो पर्सन लास्ट में अलाइव था कि नहीं था, ठीक है। सो ये हमारा क्या था कंक्लूजन, यस एंड नो, ठीक है। सो नाउ सपोज यू आर हैविंग लेट्स से ट्रेन्ड मॉडल, 5 ट्रेन्ड मॉडल एंड नाउ यू आर गिविंग फीडिंग दिस प्रेडिक्टर रो, ठीक है। तो प्रेडिक्टर रो में क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट देयर बट बेस्ड ऑन द ट्रेन डेटा यू आर कैलकुलेटिंग इट, राइट। तो सपोज 4 ने बोला है कि वो अलाइव है और 1 ने बोला है कि भाई अलाइव नहीं है, ठीक है। तो आप क्या एंड ऑफ द डे डिसीजन क्या होगा कि भाई वो अलाइव है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक डेटा सेट दिया हुआ है, वो डेटा सेट है चेस्ट पेन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लॉक आर्टरीज, वेट एंड हार्ट डिसीज, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज ये सारे डेटा से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन को हार्ट डिसीज है कि नहीं, ठीक है। अब हमारे पास ये हिस्ट्री डेटा है, लेट्स से 50,000 हिस्ट्री डेटा है, उसका हमने 10 मॉडल तैयार किया और 10 मॉडल में से और लेट्स से 100 मॉडल तैयार किए। 100 मॉडल जब हमने तैयार किए तो वो 100 मॉडल में एक डेटा हमने पास किया प्रिडिक्शन के लिए कि भाई ये डेटा में चेस्ट पेन यस है, ब्लड सर्कुलेशन यस है, ब्लॉक्ड आर्टरी यस है, वेट 169 है। इतना डेटा पास करने पे जो 95 मॉडल ने यस बोला है कि हार्ट डिसीज है और 5 मॉडल ने नो बोला है कि हार्ट डिसीज नहीं है। सो नाउ वी थ्रू दिस वोटिंग वैल्यू और वोटिंग रिजल्ट वी कैन से दैट कि दिस पर्टिकुलर रो प्रिडिक्शन इज यस। ये समझ में आ जाता है ना, ये देखे ही समझ में आता है कि वोट काउंट कहाँ पे जाता है। तो बेस्ड ऑन वोट काउंट वी कैन कंक्लूड, वी कैन डिसाइड कि यहाँ पे उसका कैटेगोरिकल डेटा का लास्ट रिजल्ट क्या होगा, यस और नो, ठीक है, समझ में आया। So in other words, bagging is a training a bunch of individual model parallelly, and each model is trained by a random subset of the data, and based on the voting algorithm, vote count. Okay, based on vote count, we are getting the final result. Okay, so that is what the bagging is. So यहाँ पे क्या होता है, the maximum vote count method is generally used for classification problem, जहाँ पे maximum होगा. In this technique, multiple models are used to make prediction for each data point, and prediction by each model are considered as a vote, ठीक है, and the prediction which we get from the majority of the model are used as a final prediction. Clear हुआ? So bootstrapping में database तैयार होता है, bagging में हम vote count करते हैं, ठीक है। So same way ये ensemble bagged है, तो यहाँ पे training data है, training data से sample 1 2 3 4 ऐसे सारे सैंपल जो है वो तैयार हमने लिए, सैंपल्स डेटा तैयार किया और उसका मॉडल ट्रेन किया और मॉडल ट्रेन करके हमें क्या मिला है, आउटपुट मिला है, ठीक है। और वो आउटपुट के बेस पे अभी हम ट्री को जज करें, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही है कि डेटा के बेस पे यहाँ पे टेस्ट सैंपल देखो मिले हैं, टेस्ट सैंपल से ट्रेन किया है मॉडल को और उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेडिक्शन आएगा, ठीक है, जो मैक्सिमम होगा वैसे। सो अब रैंडम फॉरेस्ट अगर हम लोग, ये 2 टेक्नोलॉजी है एनसेंबल एल्गोरिथम यूज करने के लिए है, दैट इज बूटस्ट्रैप एंड बैगिंग। ओके, नाउ रैंडम फॉरेस्ट में पर्टिकुलरली क्या होता है, तो रैंडम फॉरेस्ट इज अ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम और यहाँ पे हम
क्या करेंगे, डिसीजन ट्री के बेस पे सारा काम करेंगे, बिकॉज रैंडम फॉरेस्ट इज बेस्ड ऑन डिसीजन ट्री। ठीक है, सो यहाँ पे सेम हम जितने भी मॉडल तैयार करने हैं वो क्या होगा, ट्रीज रहेंगे, सारे ही ट्रीज रहेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट इट बिल्ड्स इज एन एंसेंबल ऑफ डिसीजन ट्री यूजिंग ट्रेन्ड विद द बैगिंग मेथड। ठीक है, तो जनरल आइडिया आपका क्या है, यहाँ पे एक एल्गोरिदम देखेंगे तो समझ में आएगा। तो रैंडम फॉरेस्ट ऑल्सो वी आर यूजिंग व्हाट फॉर द क्लासिफिकेशन ओनली, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए ही यूज होता है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इट इज मेड अप ऑफ ट्रीज एंड मोर ट्रीज मीन्स मोर रोबस्ट फॉरेस्ट। ओके, जितने ज्यादा ट्रीज बनाएंगे मतलब जितने ज्यादा मॉडल उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम क्रिएट्स डिसीजन ट्री ऑन डेटा सैंपल एंड दैट देन गेट द प्रेडिक्शन फॉर फ्रॉम ईच ऑफ देम एंड फाइनली सिलेक्ट द बेस्ट वैल्यू। ठीक है, सो एक हम इसका स्टेप्स देखेंगे तो समझ में आएगा। पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट द सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल from a given data set, that is nothing but bootstrapping. Then after this algorithm will construct a decision tree for every sample. Suppose यहाँ पे आपने लिखा है and tree is equal to 500, तो 500 different trees बनेंगे with some rows and some columns. I am not talking all the columns every time, some columns and some rows based on bootstrap algorithm. ठीक है, तो वो randomly जो भी लेते हैं उस हिसाब से 500 trees बनेंगे and this all the trees are different from others. Okay, and step 3 में क्या होगा, in this step voting will be performed for every predicted result. अगर मुझे कोई predict करना है result तो मैं सारे 500 में उसका डेटा फीड करेंगे और उसका prediction चेक करेंगे और vote count चेक करेंगे और उसके बाद at last select the most voted प्रेडिक्शन रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा लगा आपको, इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू फीड इनपुट वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रैंडम फॉरेस्ट में क्या लगा आपको, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नंबर ऑफ ट्रीज। जितना नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा होगा उतना आपका क्या होगा, एक्यूरेसी ज्यादा होगा। नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रायल एंड एरर मेथड। आप उसको 500 करो, 550 करो, मतलब 1000 तक लेकर जाओ, 1000 नाउ बेस्ड ऑन डेटा सेट। ऐसा नहीं कि डेटा आपका 10 रो का है और आप 1000 ट्री बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स वी आर हैविंग लेट्स से 50,000 डेटा, तो यू गो विद द 1000 ट्री, 2000 ट्री, और उसके बाद सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट द लेसर एक्यूरेसी। ओके, तो वहां पे स्टॉप होना है जहां पे आपका एक्यूरेसी फॉल होना शुरू हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली ट्रायल एंड एरर मेथड है। ठीक है, तो दिस वे ओरिजिनल डेटा सेट है। यहाँ पे ओरिजिनल डेटा सेट के बाद वी आर हैविंग आउट ऑफ बैग डेटा सेट ऑल्सो। व्हाट इज दिस आउट ऑफ बैग डेटा सेट? दिस इज द एंट्री दैट डिड नॉट एंड अप इन द बूटस्ट्रैप डेटा सेट। नाउ सपोज यू आर हैविंग 50,000 डेटा और आप 500 ट्रीज बना रहे हो उससे यूजिंग सम रोज एंड सम कॉलम्स। ओके, सो सम मे बी पॉसिबल in this randomness you are having some row which are not used in any of the trees. सारे ही ट्री आपके अलग अलग मॉडल है। ठीक है, तो वो 500 जो ट्रीज बनाए आपने उसमें से एक में भी वो वाला रो यूज नहीं हुआ है, उस रो को आउट ऑफ बैग डेटा सेट बोलते हैं, वो जितनी भी रोज बचती है, एंड दैट इज फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ओके, सो 25% डेटा सेट मे बी आउट ऑफ बैग कैन बी यूज फॉर द वैलिडेशन। ठीक है, बिकॉज वैलिडेशन करना जरूरी है, विदाउट वैलिडेशन यू कैन नॉट गेट द एक्यूरेसी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू वैलिडेट द डेटा इज व्हाट? यस, एनीवन? डेटा वैलिडेशन के लिए कौन सी मेथड यूज कर रहे हो आप लोग लैब में? देयर आर टू मेथड्स which are very well known in research. The first one is confusion matrix, true positive and false negative, false positive and true negative. And the another one is k-fold validation. Generally we are using with random forest we are generally using 10-fold validation. Okay, so with 10 iteration we are getting the error value, and based on that we can decide the accuracy of the model. Clear? So ये यूज किया कि नहीं आप लोगों ने? के फोल्ड वैलिडेशन एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो अपने आप ही रिजल्ट में आ जाता है, बट उसको आपको इंटरप्रेट करना जरूरी है। ठीक है,
So that is what we are doing with the random forest. Yeah, any question with the random forest? We will see quickly some pros and cons of random forest. It overcomes what? Overfitting. Well, for large range of data, वेरिएंस कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एक्यूरेसी हाई होगी यहाँ पे, और स्केलिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट ऑल द डेटा विथ वन ट्री. ठीक है, अगर एक ही ट्री में रहेगा डेटा तो हमारा प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा रहता है, क्योंकि एक ही साथ हमें पूरे इतने 50,000 डेटा को हमें प्रोसेस करना है. बट हियर वी आर हैविंग स्मॉल स्मॉल trees. Okay, so now that tree it's very easy to process. Okay, तो उसके लिए आपको स्केलिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, सो अगर आपका कुछ डेटा मिसिंग भी है कुछ कॉलम्स में, तो भी यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट आपको अच्छी एक्यूरेसी दे देगा. ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम में क्या होगा, मल्टीपल ट्रीज के साथ आपको काम करना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रैंडम ट्रीज आर मच हार्डर एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑफ कोर्स देन डिसीजन ट्री. मोर कंप्यूटेशनल रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, अगर आप उसको बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं. और लेस इंट्यूटिव इन केस व्हेन वी आर हैविंग लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा ट्री, डिसीजन ट्री. ओके, and the prediction process using random forest is very time consuming, वो हमने देखा. ठीक है, so time consuming तो होगा of course, because we are not relying on one model, we are relying on 500 models. तो 500 का ओपिनियन मिलने के बाद कुछ काम कर रहे हैं तो टाइम ही लगेगा. ठीक है, so that way it is these are the disadvantage of random forest. Yeah, Thank you, everyone.